morning to my dear students. Welcome back to Atmic Green School, J. Swaminarayan. Today, standard 9th, book Civics, page number 86. That is, students, today it is the continuation of chapter 5, Working of Institutions. And we start with page number 86. That is, Political Executive. This is also an institution, okay, that helps our country, our government in many ways. Do you remember the story of the office memorandum with which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. That is, office memorandum में कि ये है कि पर्सन जो डॉक्यूमेंट साइन करता है वो डिसीजन नहीं लेता है, वो सिर्फ साइन करता है. डिसीजन कोई और लेते हैं और साइन कोई और करता है. ओके, दैट इज ही वाज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स. वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन. But we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. Yes, वो decision लेना, sign करना ये तभी possible है जब लोक सभा में के लोग support करें. Because Prime Minister, Council of Ministers ये लोक सभा से ही बने हैं. In that sense, he was only executing the wishes of the Parliament. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. All those functionaries are collectively known as executives. Okay? अब जो बड़ी-बड़ी कंपनीज वगैरह में भी executives होते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं कि वही डिसीजन लेते और वही साइन करते. नो, डिसीजंस किसी पर मकसद पे कोई और करता है, साइन कोई और करता है और पीछे से सपोर्ट किसी और की होती है. देखो, एक ही बंदा सब कुछ तो नहीं कर सकता है, सभी का अमैलगमेंट होके वो काम होता है. So thus at different levels of any government we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. हर दिन कोई ना कोई डिसीजंस होते रहते हैं, बट ये नहीं कि डिसीजंस हुए और फैसले हो गया, साइन हो गया. नहीं, इट विल टेक टाइम. ओके, डिसीजंस होते हैं, कई बार हाँ होते हैं, कई बार नहीं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. ओके, तो और ये कंट्री को चलाने वाली बात है. कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई चलो छोटी सी एक कंपनी चल रही है तो चलो ठीक है, अगर छोटी मोटी गलती भी हो गई तो चलो आपस में बैठ के क्लियर हो जाए. ये ऐसा नहीं है इसमें. ओके, सो इसमें बहुत डे टू डे डिसीजंस तो होते ही हैं, क्योंकि डे टू डे बैठक होती है. आपने देखा ऐसे ही, यू हैड सीन ये ऑन द पेज नंबर 79 ऐसे रिपोर्ट निकलते हैं. फिर डे टू डे उनका होता है, पूरा डे टू डे लोकसभा की बैठक होती है, टाइम्स होता है. यस, ऑन पेज नंबर 85 यू कैन सी अ डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा. रात के 7:30 तक होता है. उसके बाद then the house is adjourned for the next day. Okay, so all those functionaries जो भी ये function करते हैं starting से लेके end तक, ये are collectively known as the executive. They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. Executive इसलिए कहा जाता है because वही मतलब in charge, they are in charge मतलब of the execution of the policies. मतलब वो ये सबके फैसले करते हैं of the government. Thus, when we talk about the government, we usually means the executive. Government executive एक ही है, क्योंकि सपोर्ट मिलता है, executions होते हैं, जब उसमें साइन होता है. और ये बहुत ध्यान में रखा जाता है कि लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या ये लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है, लोगों के नुकसान के लिए तो नहीं है. सो पूरा एक लुकआउट होता है. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, two categories make up the executive. One that
that is elected by the people कुछ समय के लिए for a specific period is called the political executive. That is political leaders है जो बड़े बड़े फैसला करते हैं, take big decisions, fall in this category. बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, उनको हक दिया जाता है बड़े फैसले करने का. और in the second category में the people are appointed बहुत टाइम तक, long टाइम तक. This is called the permanent executive or civil services, civil servants. Persons working in civil services are called civil servants. They remain in office even when the ruling party changes. मतलब वो परमानेंट है कि पार्टी बदलती भी रहेगी तो वही वो ऑफिस में रहेंगे. These officers work under political executives. ये जो officers है ये political executives के अंदर मतलब जो कम टाइम के लिए उनके अंडर वर्क करते हैं and assist them in carrying on the day-to-day administration. और हर एक दिन का एडमिनिस्टर किया जाता है, पूरा एडमिनिस्टर होता है उस प्रोसेस का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर. Can you recall the role of political and non-political executive in the case of the office memorandum? Now एक क्वेश्चन है कि why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servants? ऐसा ही है ना, जितने आप ऊपर मुकाम पे जाओगे आप नीचे वालों से मोर पावरफुल होगा, नीचे वाला आपकी पोजीशन में आ जाएगा, फिर उसके वाले नीचे वाले मतलब कि वो अंडर रहेंगे, आप पावरफुल हो जाओगे. The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister. यहाँ ऐसा लिखा है कि जो सिविल सर्वेंट है वो मिनिस्टर से ज्यादा होशियार है, उनको ज्यादा नॉलेज है, फिर उनके फैसले क्यों अहम फैसले नहीं माने जाते हैं जैसे सिविल सर्वेंट्स है, क्यों मिनिस्टर्स के फैसले, क्योंकि वो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो डिसीजंस लेते हैं अहम फैसलों के. सिविल सर्वेंट्स को वो राइट नहीं दिया गया है. जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एडवाइजर होता है उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री से ज्यादा नॉलेज होती है, तो क्यों उसका कहना नहीं मानते हैं, क्यों फाइनेंस मिनिस्टर का कहना मानते हैं? भाई उसके पास पॉलिटिकल लीडर, वो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है. Sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under the ministry. कई बार ऐसा होता है कि जो जितने मिनिस्टर्स हैं उनको टेक्निकली वो बहुत मतलब उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वो कुछ अहम फैसले नहीं ले पाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है ज़्यादा. This could easily happen in ministers जैसे डिफेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर, टेक्नोलॉजी, माइनिंग. Why should the minister have the final say on these matters? इतनी नॉलेज नहीं होने के बावजूद भी फाइनल डिसीजन यही लेते हैं, क्यों ऐसा? The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. क्योंकि हमारी वजह से डेमोक्रेसी बनी है. लोगों ने विश्वास करके किसी लीडर को पॉलिटिकल, किसी बंदे को पॉलिटिकल लीडर बनाया है, तो लोग सबसे बड़ी पावर है आज. लोग, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. हमने जिसे इलेक्ट किया है उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा, उनके जो अंडर काम करते उनका नहीं होगा. सो हम पीपल, वी आर द पावरफुल. वेरी सिंपल है, हम वो लोगों को इलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को, जो कम टाइम के लिए, लेकिन हम इलेक्ट करते हैं. इसलिए कंट्री चलती ही लोगों की वजह से है. तो जब लोग किसी को विश्वास करके उसे वोटिंग देते, उसे जिताते हैं, तो क्वेश्चन मार्क कोई अराइज ही नहीं होता है. The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. The minister is elected by the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. Minister को people elect करते हैं और इसलिए उनके पास भी पूरी पावर आ जाती है और वो पावर लोग उन्हें देते हैं. It comes to them through on the behalf of people. She is finally answerable to the people for all the, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो जिन लोगों ने किसी मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, वो मिनिस्टर ने वो डिसीजन फाइनल कर दिया है. कोई भी प्रॉब्लम हो तो मिनिस्टर को, लोगों को जवाब देना पड़ेगा. दैट्स ऑल.
उसे वो बात की नॉलेज ज्यादा है कि नहीं है, उसके उनके एडवाइसर्स को ज्यादा नॉलेज है, वो कुछ नहीं। कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको लोगों को जवाब देना पड़ेगा बस। That is why the minister takes all the final decisions. The minister decides the overall framework and objectives in which decisions on policies. The minister decides the overall framework and objectives in which decisions on policy should be made. The minister is not and is not expected to be an expert in the matters of her ministry. The minister is not expected to be an expert in the matter of a ministry. The minister takes the advice of experts on all technical matters, but very often experts hold different opinions or place before her more than one option. But very often experts hold depending on what the overall objective is, the minister decides. पूरा प्लान करके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है तो मिनिस्टर डिसाइड करता है और फिर वो बात बाहर लीक होती है. Actually this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most important decisions, not the experts. जिन्हें ये पूरी पिक्चर समझ आ जाती है या वही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, एक्सपर्ट्स नहीं लेते हैं. The experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. Okay, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो एडवाइजरी होते हैं, वो सही राह उन्हें दिखाते हैं, वो सही राह पे चलते हैं और बाद में जो फैसला लेना होता है वो वही लेते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह ही लेते हैं. इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल. इसलिए जो बड़े बड़े डेमोक्रेसी में मिनिस्टर्स हैं वही ये बड़े फैसले लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. Yet there is no direct election to the post of the Prime Minister. The President appoints the Prime Minister, but the President cannot appoint anyone she likes. Appoint करती है on the behalf of people. अपनी मर्जी से वो किसी को भी Prime Minister नहीं बना सकती है. The President appoints the leader of the majority party or the coalition that commands a majority in the Lok Sabha as Prime Minister. लोकसभा में मेजॉरिटी होगी तभी प्राइम प्रेसिडेंट उसे इलेक्ट करेगी. कमांड्स एज अ प्राइम मिनिस्टर इन केस नो सिंगल पार्टी और इज गेट मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. मतलब अगर मेजॉरिटी नहीं है या टाई आ रहा है तो फिर उसके बाद अपने में से जो मेजॉरिटी होता है फिर उनको देख के हिसाब से वो उसे प्राइम मिनिस्टर बनाती है. The Prime Minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. Okay, that is a Prime Minister का fixed tenure नहीं होता है. 5 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, इट डिपेंड्स इन द लोकसभा. लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स दोनों निकल सकते हैं. After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. फिर Prime Minister को President elect करता है और फिर Prime Minister आगे अपने Cabinet of Ministers को elect करते हैं. The ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in the Lok Sabha. The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of Parliament. Okay, clear this much? Then his Council of Ministers is the official name of the body. एक
बॉडी का एक ऑर्गन है दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स. इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक्स, छोटे से लेके बड़े रैंक तक. कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. जैसे कोई भी रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट को आजकल रन करे, बीजेपी, वो आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज. मतलब कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो मेजर मिनिस्टर, उनके भी टॉप होते हैं. यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक द डिसीजंस इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल. बाहर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स. ओके, inner ring, it comprises of about 20 ministers. Then ministers of state with independent charge. नहीं, एक नीचे दिन ना करना जोड़ी थी. वो एक्सेल है, वो 40 में. वो बोले नाम बोले. Ministers of state with independent charge are usually in charge of small ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. ऐसे छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं, उनको जब किसी काम के लिए इनवाइट किया जाता है तभी वो उस मीटिंग में आते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. सिंस इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग डेली, द डिसीजंस आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स. की एक ही बैठ के सबके साथ मीटिंग हो जाएगी. दैट इज व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. The cabinet works as a team. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. Ministers के हो सकते हैं उस cabinet ministers में ministers के different हो उसके views and opinions, but everyone has to own up. लेकिन किसी ना किसी decision तो मानना पड़ेगा ही आपको cabinet ministers में. See, you can see. देखो ये जो कार्टून दिख रहा है ऑन पेज नंबर 88, दिस कार्टून डिपिक्ट्स अ कैबिनेट मीटिंग. देखो ये कैबिनेट मीटिंग है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन अर्ली 1970s एट द पीक ऑफ हर पॉपुलैरिटी. डू यू थिंक सिमिलर कार्टून्स कुड बी ड्रॉन अबाउट अदर मिनिस्टर्स हु फॉलोड हर? दिस कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं. No minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करनी. आप किसी का काम आपको पसंद नहीं है, कोई नहीं पसंद है, वहाँ बुराई नहीं करनी है. Every minister has secretaries who are civil servants. ये हर एक मिनिस्टर के नीचे एक है जो उन्हें अच्छी राय देते हैं, प्लान देते हैं, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ये प्रस्ताव रखना है, ये बोलना है. हर एक सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस. और वो पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं और वो अपने अपने मिनिस्टर को, पर्टिकुलर सबका अलग अलग सेक्रेटरी है, तो वो लेके आते, प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स. The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat.
This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of the different ministers. ये जितने ministers हैं सबके civil servants हैं, यानी सबके under जो उनके advisors या उनके secretary सबके हैं ये. See, you can see, list the names of the 5 cabinet, yellow box में, list the names of 5 cabinet ministers and their ministries each at the union level in your state. Meet the mayor or municipal chairperson of your town or president of Zilla Parishad of your district and ask him or her about how the city, town or district is administered. तू लेना निकाल लेना, सुनने डाल देना. क्या डालूं? 4 बजे को जाना है, ये फोटो है यहाँ से. कोई और पहन ले. नहीं है, कोई टी शर्ट ही नहीं है यार, सब शॉर्ट है, नहीं अच्छी लगती शॉर्ट टी शर्ट. उधर 2 दिन पहले कपड़े पहने हो तो. Okay, so students, in my next class I will continue with page number 88, that is powers of the Prime Minister. From here I will continue in my next class. Please do read the lesson. Okay, and on page number 93 you can see the glossary. Please इस glossary को पढ़ो and note down in your CW SST book. I will share exercises with you. हम discuss करेंगे exercises. All exercises I will discuss. And in my previous class I had sent you to PDF. Okay, वो PDF आप copy करो और उसे अपनी CW में SST के और उसे पढ़ो. Also copy this glossary in your CW. Glossary also you copy in your CW. And please do read the lesson. So from page number 88, that is powers of the Prime Minister, I will continue in my next class. Please read up till 87. Do complete your books. PDF मैंने भेजा है. Note this glossary. Okay. See, वहाँ पे दिया है coalition government, executive government, judiciary on page number 93. What is judiciary? Legislature, legislative or legislature एक ही तरह office memorandum. A communication issued by an appropriate authority stating the policy or decision of the government. Political institution, reservations, state. किधर अंदर जाता है? तो ऊपर से अपने कोई टी शर्ट लेके आओ जो नॉर्मली लोग जो आपको. पूछी मत करो, सब धोने डालिए और उतना पता Okay. होना चाहिए आपको. So with this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.